Hello student. Now today we are going to read class 12 English poetry. Lesson 2. The True Beauty. The True Beauty composed by Sir Thomas Carew. Now we read about the Sir Thomas Carew. Sir Thomas Carew was born in 1595. He was born in 1595 and his father Matthew was a master in chancery. He got his education at Oxford. At Oxford University. You know that Oxford University is the greatest university. Then he became the secretary to Sir W. Carleton at Venice. He also became the secretary to Sir Dudley Carleton at Venice. Carew is one of the cavalier poet of the Caroline period. He was impressed by John Donne. Sir Thomas Carew also impressed by John Donne. And you know that John Donne is the metaphysical poet. John Donne is also known as the metaphysical poet and he died in 1639. Now we read the central idea of the poem. In this poem, the poet prizes beauty of character. It is true beauty. Here in this poem, the Thomas Carew prizes the beauty of character. Beauty of character. It is true beauty. It is true beauty. It is consists in love and loyalty. In love and loyalty. It has nothing to do with physical charms. Physical beauty becomes less as times. Here the poet says the physical beauty becomes less as the time passes. Love made on the basis of physical beauty. The true love is made on the basis of physical beauty is short-lived. The essential thing for the true beauty are gentle thoughts. Here the poet says that the essential things for the true beauty are gentle thoughts and calm desire and firm mindedness. Here the poet says that if you like the true love, if you want to true love, then you have the essential things. You have the essential thing for the true beauty. For the true beauty are gentle thought, calm desire and firm mindedness. If you have not mindedness, calm desires, then you cannot got the true love. तो इस पोयम में सर थॉमस कैर्यू कहते हैं कवि जो है चरित्र के सौंदर्य की प्रशंसा करता है। इसमें कवि क्या करता है? चरित्र के जो है सौंदर्य की प्रशंसा करता है और यही वास्तविक सौंदर्य होता है। यही वास्तविक क्या होता है? सौंदर्य होता है। जो हमारा यहाँ पे देखिए कब क्या कहते हैं? इट इज़ कंसिस्ट इन लव एंड लॉयल्टी। जो हमारा सच्चा प्रेम होता है, सच्चा सौंदर्य होता है, जो वास्तविक सुंदरता होती है, प्रेम और निष्ठा में निहित होती है। प्रेम और निष्ठा में निहित होती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ फिजिकल चार्म्स। शारीरिक सौंदर्य का इससे कोई संबंध नहीं है। फिजिकल ब्यूटी बिकम लेस एज टाइम पासेज। जो हमारा फिजिकल ब्यूटी शारीरिक जो संबंध सुंदरता है, हमारी भौतिक सुंदरता जो है, समय गुजरने के साथ साथ जो है शारीरिक सौंदर्य हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर हम शारीरिक सौंदर्य से प्यार करते हैं तो जिस तरह हमारा जो है समय गुजरता है उसी के साथ हमारे जो शारीरिक सौंदर्य है वो कम हो जाता है। लव मेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लाइफ। तो यहाँ पे कब क्या कहते हैं कि शारीरिक सौंदर्य पर आधारित जो हमारी प्रेम है, शारीरिक सुंदरता पर आधारित जो हमारा प्रेम है वो क्या है? अल्पकालीन होता है। तो क्या होता है? अल्पकालीन होता है, शॉर्ट लाइफ होता है। द एसेंशियल थिंग फॉर द ट्रू ब्यूटी आर जेंटल थॉट। सच्ची सुंदरता के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छे विचार होने चाहिए, काम डिजायर शांत भावनाएं होनी चाहिए एंड फर्म माइंडेडनेस और दृढ़ता की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, यदि हमारे पास ये सब नहीं है तो हमें सच्ची सुंदरता प्राप्त नहीं हो सकती है।
Next, now we read the true beauty. It is also known the unfading beauty. It is also known as the first stanza of the poem. He that loves a rosy cheek, or as a coral lips admires, or from star-like eyes doth seek, fuel to maintain his fires, as old times makes these decay, so his flames must waste away. First of all, we explain in Hindi and after that in English. तो स्टूडेंट पहले हम इसकी जो है कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग को देख लेते हैं, उसके आगे तब देखते हैं। तो रोजी चिक्स मीन्स क्या होता है? गुलाबी जैसे गाल, ठीक है। कोरल मीन्स क्या होता है? मूंग। एक कोरल मीन्स क्या होता है? कोरल मीन्स होता है मूंग ना। देखिए उसके बाद दाँत सिक देखिए जो है, हाँ, लिप एडमायर्स मीन्स होता है होठ की प्रशंसा करना। उसके बाद स्टार लाइक मीन्स क्या होता है? स्टार लाइक मीन्स होता है तारों की तरह दिखने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दाँत सिक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, टू मेंटेन फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। यहाँ देख लीजिए फ्यूल मीन्स क्या होता है? फ्यूल मीन्स ईंधन। और टू मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना। डीके मीन्स क्या होता है? डीके मीन्स होता है फिनिश यानी नष्ट होना या समाप्त होना। फ्लेम्स मीन्स होता है ज्वाला। एंड वेस्ट मीन्स नष्ट होना। यहाँ पे देखिए कब क्या कहते हैं ही दैट्स लव्स ए रोजी चिक। यहाँ पे कहते हैं वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। ही दैट लव्स ए रोजी चिक, वे व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के लवर्स के जो है गुलाबी गालों को पसंद करता है, से प्रेम करता है। और एक कोरल लिप एडमायर्स, अथवा उसके मूंग जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक्स आइट दो चिक, अथवा जो है उनके फ्रॉम स्टार लाइक्स आइज, सितारे जैसे सुंदर आँखों से जो है क्या करता है? डॉट सीक खोजता है, उनके सितारे जैसे सुंदर आँखों में खोजता है। क्या खोजता है? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, जो है इसे अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। उनके स्टार जैसे जो है सितारे जैसे सुंदर आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। एज ओल्ड टाइम्स फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स मीन्स अपने जो है ज्वाला को, प्रेम की ज्वाला को क्या करता है? प्रज्वलित करता है। एज ओल्ड टाइम्स मिक्स दिस डीके, ऐसे व्यक्ति की प्रेम की ज्वाला उस समय नष्ट हो जाती है। एज द ओल्ड टाइम मीन्स जब वृद्धावस्था आती है, जैसे समय समाप्त होता है मिक्स दिस डीके, तो ऐसे व्यक्ति की प्रेम की ज्वाला जो है उस समय नष्ट हो जाती है जब बुढ़ापा उसकी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य को समाप्त कर देता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, जब उसके प्यार की जो ज्वाला है मस्ट वेस्ट अवे, समाप्त हो जाती है। जब उनके प्रेम की ज्वाला जो है समाप्त हो जाती है, इसका अर्थ है जब बुढ़ापा उसकी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य को समाप्त कर देता है, तो उनकी जो वास्तविक सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी है, वो भी उनके साथ समाप्त हो जाती है। फिर से इसका देख लीजिए। ही दैट लव ए रोजी चिक्स, वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका की गुलाबी गालों से प्रेम करता है और एक कोरल लिप एडमायर्स या उसके मूंग जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक डॉट सिक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, और फ्रॉम स्टार लाइक उनके जो है सितारे जैसे सुंदर आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। एज ओल्ड टाइम मिक्स दिस डीके, और जो है समय के एज द ओल्ड टाइम, और वृद्धावस्था में जो है दिस डीके ये नष्ट हो जाते हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे,
जब बुढ़ापा उसके प्रेम क्या के शारीरिक सौंदर्य को समाप्त कर देता है। जब बुढ़ापा जो है उसकी प्रेम क्या के शारीरिक सौंदर्य को समाप्त कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति की प्रेम की ज्वाला उस समय क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नाउ वी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्टैंजा। बट ए स्मूथ एंड steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. यहाँ पे देखिए बच्चों, बट ए स्मूथ एंड steadfast माइंड। बट फर्स्ट हम जो है इसके इम्पोर्टेंस मीनिंग को देखते हैं। स्मूथ, स्मूथ मीन्स क्या होता है, चिकना। स्मूथ मीन्स क्या होता है, चिकना। स्टीडफास्ट, स्टीडफास्ट मीन्स क्या होता है, दृढ़, जिसे हम कहते हैं फर्म। स्टीडफास्ट मीन्स दृढ़। एंड डिजायर, डिजायर मीन्स क्या होता है, इच्छा। जेंटल मीन्स गुड, जेंटल मीन्स गुड एंड डिजायर मीन्स इच्छा। थॉट मीन्स विचार। काम, काम मीन्स क्या होता है, काम मीन्स होता है शांत, और डिजायर मीन्स इच्छा, यानी शांत इच्छाएं। और उसके बाद देखिए कंबाइनेड, कंबाइनेड मीन्स क्या होता है, मिक्स्ड। कंबाइनेड मीन्स मिक्स होता है, ठीक है, कंबाइनेड में मिक्स। और उसके बाद जो है डिस्पाइस, डिस्पाइस मीन्स क्या होता है, लीव यानी छोड़ देना। डिस्पाइस मीन्स त्याग कर देना। अब आगे देखिए, यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि बट ए स्मूथ एंड steadfast माइंड, बट ए स्मूथ एंड steadfast माइंड, किंतु कवि जो है निष्कपट और दृढ़ मन, सुंदर विचार, शांत इच्छाएं तथा समान प्यार से जुड़े हृदय कभी नष्ट होने वाले प्रेम को जन्म देते हैं। बट ए स्मूथ, लेकिन जो हमारे स्मूथ एंड steadfast माइंड, और हमारा जो दृढ़ विश्वास है, हमारा जो दृढ़ विश्वास है, और हमारा जो स्मूथ माइंड है, दृढ़ विश्वास है, जेंटल थॉट्स, और हमारे जो सुदृढ़ विचार है, सुंदर विचार हैं, एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाएं हैं। हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइनेड, हर्ट्स विथ लव, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइनेड, शांत इच्छाएं तथा समान प्यार से जुड़े हृदय कभी नष्ट होने वाले प्रेम को जन्म देते हैं। लव कंबाइनेड, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये हमारे जो प्यार है कभी भी समाप्त नहीं होते। किंडल लव, किंडल लव मीन्स इस प्रकार के जो हमारे प्यार होते हैं वो कभी समाप्त होते नहीं हैं। वेयर देयर आर नॉट, जहाँ पे ये सब नहीं पाया जाता है, आई डिस्पाइस, जहाँ पे पर ये गुण नहीं पाए जाते हैं, मैं ऐसी प्रेम क्या कि सुंदर गालों या होठों या आंखों से घृणा करता हूँ। लवली चिक्स और लिप्स आर आईज, मैं ऐसे सुंदर गालों को, ऐसे होठों को और ऐसे सितारे जैसे आंखों को क्या करता हूँ, नष्ट करता हूँ, यानी मैं उससे क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। यहाँ फिर से देख लीजिए, बट ए स्मूथ एंड steadfast माइंड, gentle thoughts and calm desire, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where doth are not, I despise lovely chicar eyes. यहाँ दे बट ए स्मूथ एंड steadfast माइंड, जहाँ पे दृढ़ और स्थिर माइंड विचार, यहाँ जहाँ पे दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क जो है क्या होता है, एंड जेंटल थाट, एंड जेंटल थाट मीन्स जहाँ पे शुद्ध और अच्छे विचार होते हैं, जहाँ पे दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क होते हैं, सुंदर एवं अच्छे विचार होते हैं, एंड काम डिजायर, और जहाँ पे शांत इच्छाएं या भावनाएं पाई जाती हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल नेवर डाइंग फायर्स जो है वहाँ पे जहाँ पे प्यार के प्रति क्या होता है, प्रेरणा होती है किंडल नेवर डाइंग फायर, तो ऐसी जगह जो है कभी हृदय कभी नष्ट होने वाले प्रेम को जन्म नहीं देती है, जहाँ पे शांत इच्छाएं होती हैं, दृढ़ विचार होते हैं, और जहाँ तथा समान प्यार से जुड़े हुए हृदय कभी नष्ट न होने वाले प्रेम को जन्म देते हैं। किंडल
वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये सब नहीं पाए जाते हैं, जहाँ पर ये गुण नहीं पाए जाते हैं आई डिस्पाइस, मैं उससे घृणा करता हूँ, मैं उससे को त्यागता हूँ। लव चिक्स आर लवली लिप्स आर आइज, मैं ऐसे सुंदर गालों को त्यागता हूँ, मैं ऐसे होठों को, मूंग जैसे होठों को और सितारे जैसे आँखों को त्यागता हूँ। प्यार क्या होता है? प्यार वहाँ होता है जहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, नैतिक गुणों का अभाव होना चाहिए, जहाँ पे क्या हो जो है, जहाँ पे निष्कपट न हो और दृढ़ मन हो, सुंदर विचार हो, शांत इच्छाएं हो, वहीं पर प्यार पाए जाते हैं। यह कवि कहता है कि जहाँ पे जो है सुंदर विचार हो, जहाँ पे क्या हो, सुंदर विचार हो, दृढ़ता हो, स्थिर मस्तिष्क हो, सुंदर और अच्छे विचार हो और जहाँ पे शांत भावनाएं हो वहाँ पे कभी नष्ट न होने वाले प्रेम जो है जन्म लेते हैं। और जहाँ पे जो है ये सब नहीं पाए जाते हैं, ये गुण नहीं पाए जाते हैं, मैं ऐसे गुलाबी गालों को, ऐसे मूंग जैसे होठों को और सितारे जैसे आँखों को जो है से घृणा करता हूँ। कवि के अनुसार अस्थायी प्रेम के लिए हमें क्या चाहिए? सौंदर्य शरीर की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अस्थायी प्रेम के लिए जो हमें शारीरिक सौंदर्य की आवश्यकता नहीं है, हमें सुंदर विचार तथा उच्च चरित्र के कारण ही अस्थायी प्रेम रह पाता है। जहाँ पे जो है उच्च चरित्र ना हो और प्रेम अस्थाई जो है वहाँ पर रह नहीं पाता है। आगे देखिए, नाउ वी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। He that loves a rosy cheek or a coral lips admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old times mix these decay, so his flames must waste away. In this poem, the poet says about the true love. He also says that virtue is essential for beauty. Virtue is essential for beauty. Without virtue, a woman cannot be called beautiful. If a woman have not a virtue, cannot be called a beautiful lady. The true beauty is necessary for permanent love. The true beauty is necessary for permanent love. If a man care only for his physical charms, he also loves his rosy cheeks, and he also admires his lips, and he also deep in his star-like eyes, and also showing his love. There is not love. There is not love. His love become less when he beloved became old. Here the poet says that as the old time makes these decay, his loves become less. His love become less when his beloved become old. In that state, he will not be attracted in the same manner when his beloved was young and full of charms. At the old time, his love is not looking like the before. Is not looking like the before. That because he also love his physical. His love is also physical because he also admire his rosy lips and uh, coral lips, and he also live in his star like eyes, and he does not seek to the true love. He does not seek to the true love, and they and this type of love is not also permanent. True beauty is necessary for permanent love, but there we cannot find true love. And next, but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desire, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. When these are not, I despise love cheeks or lips or eyes. Here in this poem, the poet also compare to the true love and physical beauty. True love and physical beauty. He also says that if a man also love a physical beauty,
like to a physical beauty, but after the but after the some time his love decay. His love decay. If he if he true love, they did not decay after the time. Here the poet says that charming future do not make true beauty. The charming future do not make true beauty. For true beauty, moral qualities are essential. If you want to true beauty, so you have moral quality are essential. In the absence of moral quality, a woman cannot be called beauty. In the absence of moral quality, if a woman have not a moral quality, they cannot be called beautiful. Firmness of mind is an essential part of true beauty. Pure thought and good intention are the basis of love. A woman without virtue is nothing but a show pieces. She cannot captivate the heart of her lover forever. As soon as she loves her charms, her lover will case to love her. He case to love her. Here the poet says that where there is no quality of where there is no quality of for mind and true nature, there is no love. I despise, I hate this type of love. There is no, I hate there is no for mind and good ideas. If you want to true love, first your lover has a your beloved have a for mind, pure and good ideas. Here the poet compare the true love and physical love, and the true love is better than physical love. सो स्टूडेंट, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो को आप अच्छे और आसानी से पढ़ सकें। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।